Hello friends, this is Kumar and I welcome all of you to my YouTube channel. Friends, today we are going to discuss Nature's Questioning by Thomas Hardy. Thomas Hardy, born 1840, died 1928, was born in southwest England. His father was a mason and his mother was fond of reading and relating the folklore and legends of the region. It was from his parents that Hardy imbibed his interest in architecture and music, his interest in the lifestyles of country folk, as well as his passion for literature. Although Thomas Hardy enjoys reputation as a great novelist, but he continued to describe himself primarily as a poet. Hardy viewed life as a process of continuous suffering. As he described in his novel The Mayor of Casterbridge, he says, happiness is what an occasional episode in the general drama of pain. He believes that man is just a puppet in the hands of fate. He differs from Alfred Lord Tennyson and Robert Browning, who showed the optimistic life of nature, while Hardy showed the pessimistic life of nature. The present poem, Nature's Questioning, is a kind of questioning of someone or something to the nature, and as well as nature's questioning to someone or something. Nature's questioning is viewed as a kind of amphiboly, which is a kind of language in which different words have different meanings, but when the words are together, they don't have any exact meaning. Like nature and questioning, they have their own meaning, but when they are used together, they don't get an exact meaning. They don't have exact meaning. So this is a kind of amphiboly. This poem is a kind of amphiboly. So now let us read the poem. Nature's Questioning by Thomas Hardy. When I look forth at dawning pool, field, flock, and lonely tree, all seem to look at me like chastened children sitting silent in a school. So here the poet says, when I look forth at dawning, मैं जब शाम ढलते समय पूल की ओर देखता हूँ, फील्ड्स की ओर देखता हूँ, या फ्लॉक्स की ओर देखता हूँ, और लोनली ट्री की ओर देखता हूँ. लोनली ट्री इज़ हेयर डिस्क्राइब्ड एज ए काइंड ऑफ मेटाफर फॉर द लोनली ह्यूमन्स लाइफ. सो बोलता है, जब मैं फील्ड्स की ओर देखता हूँ, पूल्स की ओर देखता हूँ, फ्लॉक्स की ओर देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी ओर देख रहे हैं, जैसे कि चेस्टन चिल्ड्रन बैठे हों, किसी स्कूल में शांत बैठे हों. इसको ऐसे बताया गया है कि चेस्टन चिल्ड्रन इन ए स्कूल. नेचर को ऐसे बताया गया है क्योंकि स्कूल में हम बच्चों को जनरली डिसिप्लिन वे में रखते हैं, उन्हें बिठा के रखते हैं. जनरली बच्चों का नेचर ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा खेलते कूदते रहते हैं, हंसते गाते रहते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं. लेकिन स्कूल में क्या होता है, वो बच्चे बिल्कुल मास्टर उनको डरा धमका के बिल्कुल शांत बिठा के रखते हैं, उनके नेचर के ऑपोजिट कर देते हैं. ठीक है ना. तो पोइट यहाँ पे कहना चाहता है, वी ह्यूमंस ने नेचर के साथ भी कुछ ऐसा ही कर दिया है. नेचर भी हमारी ओर यही देख रही है, और नेचर को भी हमने बिल्कुल उन बच्चों की तरह कर दिया है, जिसको मतलब नेचर को हमने मॉडिफाई कर लिया, मोल्ड कर लिया है अपने वे में, है ना. जंगलों को काट दिया है, सड़कें बना दी हैं, है ना. इस तरीके से हमने नेचर को भी उन बच्चों की तरह कर दिया है जिनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है. तो नेचर से भी हमने कुछ ऐसे ही उसकी जो क्वालिटी है उसको छीन लिया है. तो इस तरह से वो बोल रहा है, मैं उसकी ओर देखता हूँ, नेचर की ओर, और वो मेरी ओर देखती है. मैंने कहा था ना पोएम की शुरुआत में दैट इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ नेचर्स टू समवन और समथिंग एंड समवन्स क्वेश्चंस टू नेचर. सो लेट अस रीड द सेकंड स्टांजा. देयर फेसेस डल्ड, constrained and worn, as though the master's ways through the long teaching days their first terrestrial jest had chilled and overworn. Their faces dulled, constrained and worn means उनके जो फेसेस है स्कूल में मास्टर डरवा के रखते हैं ना, जैसे एज दो द मास्टर्स वेज थ्रू द लॉन्ग टीचिंग डेज. पूरा दिन बोलता है ऐसे लग रही है नेचर मुझे अब कि पूरा दिन बच्चे स्कूल में बैठे हों, उनके फेसेस डल, बिल्कुल डल हैं. कॉन्स्ट्रेंट है मतलब रिस्ट्रेंड करके रखा है, उनको बांध के रखा है ना कहीं क्लासरूम में,
बैठना तो वो नहीं चाहते, लेकिन बांध दिया है हमने स्कूलों में, है ना। तो कहीं ना कहीं ये टारगेट करता है स्कूलिंग सिस्टम को भी। हमारे जो स्कूलिंग सिस्टम है इंग्लैंड का या और कंट्रीज़ का, उनको भी इसने इस पोएम में टारगेट किया है थॉमस हार्डी ने कहीं ना कहीं, जिसमें बच्चों को उनके नेचर के ऑपोजिट करके पढ़ाया जाता है। बोर्न, ढले हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, है ना, थ्रू द लॉन्ग टीचिंग डेज, पूरा दिन पढ़ पढ़ के बिना मतलब के। दियर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल जेस्ट हैड चिल्ड एंड ओवरबोर्न। सो टेरेस्ट्रियल जेस्ट इज अ काइंड ऑफ रिलेटिंग टू अर्थ हियर। सो अर्थ की, नेचर की जो पहले चिल्ड थी, बिल्कुल ताज़ा थी, उसे अब क्या कर दिया है, ओवरबोर्न कर दिया है, उसे कहीं ना कहीं मुरझा के रख दिया है उसको हमने। किसने कर दिया है, वी ह्यूमंस ने। नेचर्स को हमने मुरझा दिया है, उनके जंगलों को काट के, सड़कें बना के, है ना, इमारतें खड़ी करके कहीं ना कहीं हमने नेचर के साथ भी वैसा ही कर दिया है जैसा कि हम बच्चों के साथ करते हैं स्कूल में, टीचर्स बच्चों के साथ करते हैं, छोटे बच्चों के साथ। एंड ऑन देम स्टीयर्स इन लिपिंग्स मेयर। लिपिंग मीन्स utterances while mere means being nothing more or better. So here both the speaker and nature are stirred by the thoughts of meaning and existence of this word. They don't know why they are here, why they exist at all. है ना, उन्हें पता ही नहीं है कि हमें, ना नेचर को पता है ना हम ह्यूमन बींग्स को पता है कि हम यहाँ पे क्यों हैं, क्यों हमें अर्थ पे ऐसे छोड़ दिया गया है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। बट इज़ अवर एग्जिस्टेंस मीन्स, क्या मतलब है हमारे यहाँ होने का, नहीं पता है इंसान को। और इसके बाद पोइट पुट करेगा तीन क्वेश्चंस पुट करेगा, डिफरेंट 3 क्वेश्चंस टू नेचर, और नेचर 3 डिफरेंट क्वेश्चंस पुट करेगी ह्यूमंस को। तो ये क्लियर नहीं है कि कौन कैसे क्वेश्चन पुट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पोइट ने 3 क्वेश्चंस पुट किए हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। सो लेट अस गो टू द थर्ड स्टैंजा। वी वंडर एवर वंडर वाई वी फाइंड अस हियर। वही बात कि हम बिल्कुल हमें पता ही नहीं है कि हम यहाँ पे क्यों हैं, धरती पे क्यों हैं, है ना। लास्ट लाइन थर्ड स्टैंजा की ये, हैज़ सम वास्ट इम्बिसिलिटी। इम्बिसिलिटी मीन्स weakness or incapability. Has some vast imbecility, mighty to build and blend, but impotent to tend, framed us in jest and left us now to hazardry. So impotent to tend means lacking power or ability, while framed means formed or made. So here, has some vast imbecility, mighty to build and blend, but impotent to tend, framed us in jest and left us now to hazardry. Here the poet says that कि ऐसा तो नहीं है कि गॉड ने हमें क्या कर दिया है, जल्दी जल्दी में बना तो दिया, है ना, जल्दी जल्दी में क्या किया, हमें बना तो दिया, इस अर्थ को, ह्यूमन बींग्स को उसने बना दिया, बिल्कुल उत्साह में आके जल्दी जल्दी बना तो दिया, लेकिन अभी वो हमें टेंड करना भूल गया है, हमें जो चलाना भूल गया है कहीं ना कहीं, कि हमें कैसे आगे पालना कैसे है ना। जन्म तो दे दिया उसने हमें, लेकिन अभी हमें पालना भूल गया है, वो छोड़ दिया उसने जन्म देके कि अभी तुम किस्मत के सहारे रह जाओ, अभी मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है ना। इस तरीके से वो भूल गया, बना तो दिया उसने लेकिन कहीं ना कहीं टेंड करना भूल गया है। ऐसा क्वेश्चंस पोइट ने पहले रखा है कि कहीं ना कहीं ये बात हो सकती है गॉड की, कि गॉड ने हमें बना तो दिया लेकिन अभी हमें जो है वो टेंड करना भूल गया है, छोड़ दिया उसने हमें किस्मत के सहारे। ऐसा ही हम उसे उसके कई नॉवेल्स में भी देखते हैं कि इंसान जो है किस्मत के सहारे ही रहता है। और कम बी ऑफ एन ऑटोमेटन अनकॉन्शियस ऑफ अवर पेन्स, और आर वी लाइव रिमेन्स ऑफ गॉड हैड डाइंग डाउनवर्ड्स, ब्रेन एंड आई नाउ गॉन। और कम बी ऑफ एन ऑटोमेटन, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन वो पुट करता है कि क्या हम किसी मशीन के द्वारा बने हैं, ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा बने हैं हम कहीं। अनकॉन्शियस ऑफ अवर पेन्स, हमें अपनी पेन्स के बारे में भी नहीं पता है। यहाँ पे पोइट मेरे ख्याल से थोड़ा गलत हो गया है, अनकॉन्शियस ऑफ अवर पेन्स। देखिए जब हम जन्म लेते हैं तो आपको पता है कि जन्म, बर्थ इज़ रिलेटेड टू पेन्स, पेन तो होता ही है, हार्डली पेन होता है तभी तो इंसान पैदा होता है ना। तो कहीं ना कहीं
ये बात गलत है कि हमें पेन के बारे में नहीं पता। वी नो अबाउट पेन्स ऑफ द बर्थ, बट पोइट हेयर सेज अनकॉन्शियस ओवर पेन्स। हम कहीं ना कहीं पोइट यहाँ पे गलत हो गया है। हम कोई ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा तैयार नहीं हो सकते। ऑटोमेटिक मशीन रूल नहीं कर रही है हमें, कहीं ना कहीं कोई पावर ही रूल कर रही है हमें। लेकिन पोइट पूछ रहा है अनकॉन्शियस ओवर पेन्स। वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें क्या किसी मशीन के द्वारा बनाया गया है, क्या हम अनकॉन्शियस हैं अपनी पेन के बारे में, पेन्स को लेकर। आर वी लाइव रिमेन्स ऑफ गॉड हैड डाइंग डाउनवर्ड्स, ब्रेन एंड आई नाउ गोन। और क्या हमारी ज़िंदगी अब ऐसे ही रहेगी कि गॉड अभी जो जिसने हमें शुरू में बना तो दिया था, लेकिन अभी जो है जब उसने बनाया था तब तो वो पावरफुल था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके पास वो पावर नहीं रही और वो अभी धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है। कहीं ना कहीं वो कहता है कि जिस गॉड ने, जिस पावर ने हमें बनाया है, हो सकता है कि उस पावर ने हमें जब बनाया था तब वो ताकतवर थी, लेकिन अभी क्या है, वो धीरे धीरे अपनी ताकत उसकी कम होती जा रही है और वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है वो पावर, है ना। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि उसने पावर को, गॉड को ह्यूमन नेचर नहीं दिया, उसने इट से लेकर दिया है। तो उसने कहीं ना कहीं इस स्ट्रेंजर्स में ऑटोमेटिक मशीन से रिलेटेड किया है उस गॉड को या फिर पावर को। नेक्स्ट स्ट्रेंजर पढ़ते हैं। और इज इट दैट सम हाई प्लान बिटाइड्स, हाई प्लान मीन्स अल्टीमेट मिस्ट्री, while betide means to happen or befall by fate. Or is it that some high plan betides, as yet not understood, of evil stormed by good, we the forlorn hope over which achievement strides? Or is it that some high plan betides means, क्या कोई ये अल्टीमेट मिस्ट्री है जो गॉड ने तैयार की है और जिसके बारे में हम, जिसको परसीव करना हमारे ह्यूमंस माइंड को के जो है हमारे बस में नहीं है, जिसको परसीव करना। जहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि हो सकता है कि गॉड ने कुछ ऐसा बनाया है जो हम ह्यूमंस के लिए, जिसको परसीव करना, जिसको जानना हमारे काबिल नहीं है और हम इसकी ओर, जानने की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हो सकता है हम फ्यूचर में इसके बारे में जान जाएं, लेकिन अभी वी आर नॉट कैपेबल ऑफ नोइंग दैट थिंग विच गॉड हैज़ मेड, एज येट नॉट अंडरस्टूड ऑफ इविल स्टॉर्म्ड बाय गुड। बोलता है कि हो सकता है कि गॉड ने तो बनाया था हमें, जो भी बनाया है, लेकिन हो सकता है कि ईविल प्रिवेल कर रहा है यहाँ पे धरती पे। हो सकता है कि जो गॉडली चीज़ें हैं वो प्रिवेल नहीं कर रही और ईविल, हो सकता है कि ईविल प्रिवेल कर रहा है कहीं ना कहीं वो ईविल जो है इज़ ए काइंड ऑफ ऑब्सक्योरमेंट। तो ऑब्सक्योर कर रहा है, वो रोक रहा है कहीं ना कहीं हमें गॉड के वेज को जानने से। कहीं ना कहीं ये बात भी हो सकती है। वी द फॉरलॉर्न होप ओवर विच अचीवमेंट स्ट्राइड्स। सो हेयर दिस लाइन मीन्स के हम फिर भी एक ऐसे प्लान को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो हो सकता है कि हमारे दिमाग के बाहर है, हमारे बस में नहीं है। वो उस चीज़ को, उस प्लान को जानना कहीं ना कहीं हमारे बस में नहीं है और हम उसको जानने के चक्कर में ही धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। पहले भी कई पीढ़ियाँ आई हैं और चली गई हैं और हम भी अभी ऐसे ही आते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं, ठीक है। और वो हो सकता है कि, बोलता है कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि ये जो जगह है ये एक छोटा प्लान है, मतलब अर्थ है एक तरह से, और कहीं ना कहीं लाइफ जो है वो हेवन में इससे बेटर हो सकती है। यहाँ पे लाइफ उतनी बेटर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में ये छोटा प्लान है कहीं ना कहीं एक बड़े प्लान का गॉड को लेकर, है ना। आगे पढ़ते हैं। दस थिंग्स अराउंड नो आंसर आई, मीनवाइल द विंड्स एंड रेन्स एंड अर्थ ओल्ड ग्लूम्स एंड पेन्स आर स्टिल द सेम एंड ग्लैडेस्ट लाइफ डेथ नेबर्स नाई। 10 थिंग्स अराउंड नो आंसर आई। ये 3 क्वेश्चंस जो पोइट ने पुट किए हैं उसको अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं मिला, आंसर नहीं मिला है इनका। ना पोइट को मिला है, ना नेचर को मिला था, ना जिसने ये क्वेश्चन नेचर से किया था उसे मिला था, है ना। तो किसी को भी कोई आंसर नहीं मिला जो भी क्वेश्चन पुट किए गए थे पोइट के द्वारा। मीनवाइल द विंड्स एंड रेन्स एंड अर्थ ओल्ड ग्लूम्स एंड पेन। और बोलता है कि हम ऐसे ही फेट के ज़रिए जैसे हम सफ़र करते आए हैं, आने वाले समय में भी हम ऐसे ही कंटिन्यू सफ़र करते जाएंगे और हम कहीं ना कहीं, हमारा डूम इसी में है, सफ़र करना और डूम हमारा इसी में ही है। पेन्स को सफ़र करना
और धीरे धीरे ख़त्म हो जाना हमारा फेट यही है और आगे भी यही चलता ही रहेगा, ऐसा पोइट का मानना था। आज स्टिल द सेम एंड ग्लैडेस्ट लाइफ डेथ नेबर्स नाई। और वो कहता है कि लाइफ और डेथ जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से, और वो कहीं ना कहीं खुश हैं। लाइफ और डेथ दोनों ही कहीं ना कहीं खुश हैं इंसान को, ह्यूमंस को सफ़र करते हुए देख के। सो दिस थिंग पोइट हैज़ मैंशनड। पोइट ने कुछ क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे नेचर के साथ, नेचर भी क्वेश्चन कर रही है ह्यूमंस से। तो क्वेश्चंस तो किए गए हैं लेकिन उनका कोई भी प्रॉपर आंसर हार्डी ढूंढ नहीं पाया था, पोइट ढूंढ नहीं पाया था, और ये क्वेश्चंस जो है उसने हमारे ऊपर छोड़ दिया था। हम जो भी इसका आंसर जानना चाहें, जो क्वेश्चन हमें लगता है कि हम आंसर करना चाहें वो कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रीडर्स के ऊपर छोड़ दी है ये बात उसने, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन 3 क्वेश्चंस को ढूंढने की, क्योंकि वो खुद तो अपनी लाइफ में इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं ढूंढ पाया था। सो दिस मच ऑल इन दिस लेक्चर। हमारी पोइम यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पोइम पसंद आई है, मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनिंग अगर आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही और वीडियो मिलते ही रहें। फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।